Indira. Hello and welcome, Indira Tiwari. It's a pleasure to have you with me. I've watched you since Serious Men, and I was really struck by your performance there. And I remember asking Sudhir Mishra, who is this person? Where have you got him from? And he was saying that, you're really talented. Then, of course, I saw you in Gangubai, and now I believe the film that you're the lead in is going to Busan. So, congratulations. So, talk a little to me about your journey so far, and I'm sure you're excited about Busan. Thank you so much, Kaveri ma'am. And I've also heard so many things during Serious Men because most of the time, whenever the lineups coming up, always I got to know, oh, Kaveri ma'am was there. Maybe Kaveri ma'am was there. So every time I was excited to meet you, but I just heard your name. But this is the first time we are meeting, so I'm super excited. Bilkul. And Thank you. thank you so much for all your love and you like my work and you appreciate it. So that means a lot. With this Busan thing, I'm actually one of my first film, Nazar Ban, my first feature film. After just after NSD, I got this feature film, and we got selected for the world premiere at Busan, but we couldn't make it happen that time. And I just thought of, oh, why this happened to me, my first film, and that's fine. I accepted because the scenario was really bad and I should not be sad at that time. But after 5 years, now this new competition section, and I was reading about it continuously, and we got selected in competition, and we are representing with our film to the global level, and it means a lot. It feels like very historic thing, where as an independent film, we are going to represent our space, our thought, our mind with other people, and I'm very sure that they will receive this in a very because it's very interesting. When I got to know about the script, I was excited and yeah, very. And I love the fact that you've embraced your curls. I'm so happy. This is the first time. My mom used to told me, if you are not tying your hair, I won't let you take with me because most of the time people are looking at you. I don't like it. So the point is, at some point after NSD and things, I start putting it like, oh, ये ऐसा ही है इसको ऐसे ही रहने दो इसको छेड़ो मत. Bilkul. And it's so beautiful. I know that a lot of people have inhibitions about curly hair, which I can't understand. I think it's one of the most beautiful things. And I was looking at watching your trailer, and I mean, it looks, I'm sorry, it sounds very superficial, but your hair is extraordinary. So, well done. But tell me where you're from, Indira. And I know you went to NSD, and that's a remarkable thing, of course. But tell me a little about how you got there and where you're from. So basically, I'm from Bhopal, Madhya Pradesh, and all my studies, like my graduation, I'm a visual artist. So I've done my Oh, graduation in Bachelor of Arts in painting, and 2007-8, I got President Award from Pratibha Devi Singh Patil ma'am for creative arts. So I do painting, sculpture, and craft work. Then I was continuously doing my theater thing, and like with rehearsals and shows. I was just doing it from 2001. I joined theater from 2001. Then this NSD happened. It popped up like something. Some of my gurus and teachers are telling me continuously. I'm hearing so many stories from other people and artists that they wanted to go to NSD, and it's very difficult to get into the institute. And I don't know. And one of my directors just he filled my form, and I got selected on my first attempt. So something I believe in, like this universe thing. If you're open and you are into your own zone, you are connected to nature, and you can hear those small things what people are giving to you, then these points are joining in a very beautiful way. And it comes up like these kind of things because I've never heard of, oh, मैं Delhi जाऊंगी, ये करना है वो करना है. I've never thought of. I was just doing my thing bit by bit. I got all my teachers, gurus, went to NSD. Then 3 years, it was wonderful.
the 3 years 24/7, that theater scenario, and you are in an institute where the topmost actors are, uh, whom you admire, whom you wanted to be like someday. And it's beautiful, it's magical actually. Still I'm thinking about and talking to you, that time it feels like, oh, itna sab kuch ikhatta ho gaya kya. So how was who were the people who taught you there, Indira? किन्होंने आपको Uh, पढ़ाया? Like who were your जब main teachers? जब मैं वहां पे थी, आर डायरेक्टर वाज वामन केंद्रे सर, and most of the time the faculties are Dinesh Khanna sir, and Shantanu Bose sir was there. Tripurari ma'am was there that time, and Hema Singh ma'am. So some guest faculties are coming and going. Most of the time I was like, बहुत इंटरेस्टिंग कुछ होता था बाहर से, कोई जैसे इसराइल से एक सर आए थे, डेविड जिंडर सर, वो खालिद सर आए थे, उन लोगों की क्लासेस होगी। अनुराधा मैम बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आई, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, बट इतना इम्पैक्टफुल था बिकॉज समवन इज कमिंग इनटू योर जर्नी एंड गिव यू क्लैरिटी। भले ही वो एक दो दो दिन के लिए हो, बट सडनली वो आपको बोलते हैं ना, क्लियरली आपको बोल देते हैं तुम्हारे प्लेट में ये रखा है, तुम्हें क्या नहीं पसंद है, ये नहीं पसंद है हटाओ, एंड जस्ट बी क्लियर ऑन योर साइड कि व्हाट डू यू वांट टू डू। So, how did it shape you? Because you were already in the arts before you went to NSD. But wahan, like, as you said, 24/7, you're living, breathing the arts. And it's not just about performing, you're reading texts, you're reading all kinds of literature from all over the world. You're listening to such bright people with so much experience. It's a transformative time, and you're totally immersed in it. मतलब, Yeah. I don't think you have time to think about anything else, right? मतलब वो True. मंडी हाउस में ही आप रह जाते हैं, right? नहीं, और बहुत बहुत तो सॉरी। हाँ, नहीं तो उसके बारे में बताइए। दैट एक्सपीरियंस इज प्राइसलेस ना? यस, बिकॉज जब मैं भोपाल में थिएटर कर रही थी, तो 2001 से थिएटर करना इज लाइक, माय मॉम यूज्ड टू टेक मी टू ऑल द प्लेसेस रिहर्सल्स के लिए, यहाँ वहाँ, एंड हम भाग भाग के स्कूल के बाद 3-3 रिहर्सल्स करते थे। सो मैं भारत भवन जैसी जगह पे इतने से इतनी बड़ी हो गई, सब आर्टिस्टों के बीच में तो होता है ना, कभी कोई कहता है इंदिरा ये करना चाहिए, शायद ये करना चाहिए, तो एज अ फ्रीलांसर थिएटर पर्सन आई वर्कड इन मोस्ट ऑफ द प्लेस इन भोपाल। सो वो मेरा एक बेस So was बहुत your mother स्ट्रॉन्ग। also interested in theatre, Indira? She wanted to do a lot. My mom, she wanted to sing, she wanted to dance, she wanted to do a lot, but my मेरे नाना जी, ही इज अ ब्लॉक ऑफिसर ट्रिपल MA, सो ही यूज टू से कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। उस समय आर्ट को इतना प्रेफरेंस नहीं मिलता था, सो उनका बोलना था पढ़ाई करो तो कुछ बन जाओगे, इससे जॉब कैसे होगी। सो मे मोस्ट ऑफ द टाइम शी वॉज यूज टू कि हाँ ठीक है ये शायद है, एंड ये चीजें रह गई। तो जब चीजें रह जाती हैं तो उन्होंने सब चीजें पास ऑन किया, एंड शी यूज टू टेक अस टू ऑल द रिहर्सल, शी वॉज सिटिंग देयर, वेट Wow. करती थी पूरे टाइम, एंड जब भी मैं उनको पूछती थी मेरा प्ले देखने के बाद, तो फिर अच्छा है और बेटर हो सकता है, अभी अभी अच्छा है, थोड़ा समझो। तो मुझे लगता है ये जो डिफरेंस है ना, उधर पे भाग भाग के जाना, लोगों से चीजें इकट्ठी करना, सीखना, वो जो सीखने का जो गुरु शिष्य परंपरा है, जो भोपाल में इतना खूबसूरत था, और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ उधर पे। मैं पैदा हुई इतने आर्टिस्टों के बीच में, लेकिन जैसे ही आप NSD जैसी जगह पे सिलेक्ट होते हैं, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से 24 to 25 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो रहे हैं, वहां पर जाते आप एक जगह बैठ गए, आपके पास एक प्लेस है जहां पर आप मतलब जस्ट थिएटर नहीं, एज एन आर्टिस्ट मैं एंट्री करने के बाद वहां पे मैंने सेट भी पेंट किया है, मैं गाने की क्लासेस करी है, मैंने डांस किया है, ओवरऑल बोलते हैं ना, आपको सारी कलाओं में पारंगत करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जब जरूरत आएगी तो सिर्फ आप एक ही काम नहीं करेंगे, आप ओवरऑल आप वहां पे रहेंगे एज अ कोलैबोरेटर। तो NSD में चीजें आसान हो गई, क्योंकि चीजें आपको सामने से मिलती जा रही थी, आपके पास एक मॉड्यूल था, आपके पास स्केड्यूल था, इतनी अच्छी फैकल्टीज थी, गेस्ट फैकल्टीज थी। सो वहां पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जहाँ पे बाहर रह के अभाव होता है, यू डोंट हैव मच स्पेस, स्पेसेस की दिक्कतें होना, सामान की दिक्कतें होना, तो अभाव में चीजें बनती है, वो उनकी अपनी सुंदरता है। पर जब आपके पास सामान होता है, जब आपके पास गाइडेंस होता है, नॉलेज होता है,
कि एक टेक्स्ट को पढ़ के कैसे समझा जाता है। पहले तो हम पढ़ के जो मैंने फील किया उस फीलिंग में थे, पर एक पॉइंट के बाद जब हम टीचर से सुन रहे हैं, ओ ऐसे पढ़ा जाता है, ओ दिस इज द वे, ऐसे नोट डाउन किया जाता है, ऐसी चीजें होती है, तो आई गेस वो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देती है, आपका एक नजरिया बदल जाता है, और आप अपने थॉट्स के साथ आते हैं। क्योंकि अभी तक तो आपने वो पढ़ा जो लोगों ने लिखा है, अभी आपने वो किया जो लोगों ने कहा है, पर एक समय आता है आप वो करते हैं जो आप सोच रहे हैं, जहाँ पे आपका थॉट है, आप क्या चाहते हैं, इस विषय पे आपका क्या कहना है। तो मुझे लगा एज एन आर्टिस्ट वो वॉइस देना, वो थॉट देना, वो ब्रेन को इतना, कि इतनी चीजों में आपसे कुछ बात की जाए और आप अपने विचार कहें। तो पहले हम दूसरों की चीज एज ए स्टूडेंट कोट करते थे, अभी ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है। वंडरफुल, इट्स सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आपके साथ कौन कौन थे? वो भी आपके साथ क्या फिल्म इंडस्ट्री आए, या वो थिएटर में चले गए? एक्चुअली एनी ये एनी पता, एनी नेम्स? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। त्रिपुरारी शर्मा मैम जो मेरी मैम थी, अभी अभी तो वो गुजर गई हैं, बट त्रिपुरारी जी। शर्मा मैम से मैंने पूछा था, मैंने कहा मैं भोपाल वापस जाके थिएटर करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। उन्होंने कहा एक बात याद रखना, और बिकॉज ऑफ हर ओनली आई गेस मैं अभी आज यहाँ पर हूँ, क्योंकि मैं हार्डकोर थिएटर पर्सन, एंड एक्टिंग मेरा ऐसा हो गया कि ओ मुझे रियलिस्टिक एक्टिंग के बारे में डिटेल में पता ही नहीं था। हम तो कुछ भी बन जाते हैं ना कितनी भी एज के, बट सिनेमा एंड थिएटर, ये दो चीजें ऐसी हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके की फ्रीडम से चीजें। तो मैम ने कहा था एक्टिंग एक्टिंग होती है, तुम्हारा मीडियम बदल जाता है, तुम्हारी ऑडियंस बदल जाती है, पर तुम बहुत जल्दी पिक होगी। क्योंकि मैं, हम लोग जब टीचर होते हैं तो हमें पता होता है कि किसे पिक किया जाएगा, सो यू विल वन ऑफ देम, बी प्रिपेयर्ड। तो मुझे एक पॉइंट पे लगा, अरे निकलते ही साथ मेरी पहली फीचर फिल्म मिल गई मुझे। तो मुझे एक सेकंड में लगा मैं कभी नहीं सोचूंगी, मैं एक्टिंग करती थी, चाहे मैं थिएटर में करूँ चाहे फिल्म में करूँ, माई एक्चुअल वर्क इज टू प्रेजेंट वट एवर आई एम गेटिंग इट, जो कैरेक्टर है जो मैं पढ़ रही हूँ उसको जब मैं बना रही हूँ, तो क्या किसी को देख के लग रहा है कि हाँ यार ऐसी औरत कहीं पर होगी, ऐसी लड़की कहीं पर है, तो वो बिलीवेबिलिटी डालना किसी चीज में और उसे बनाकर कहीं पहुंचना, इतना मैंने पक्का कर लिया था। तो हमारे बैच में से काफी लोग मुंबई में अभी भी थिएटर भी कर रहे हैं, फिल्म्स भी कर रहे हैं, चीजें कर रही हैं। रचना रचना गुप्ता मेरी बैचमेट, शी इज इन लापता लेडीज एंड शी वाज डूइंग हर थिएटर एज वेल, एंड महादेव लखावत, महादेव सिंह लखावत, एंड so many people like Pooja Vedvikyat, and Purva, they all are doing very good in theater, so many। मतलब वो लोग जो लोग आए थे एज एन थिएटर में प्ले करने, डायरेक्ट करने, वो अभी लोगों को डायरेक्ट कर रहे हैं। एंड ये कितना इंटरेस्टिंग है, दिस ग्रोथ, आई लव द वे दे ग्रो, बिकॉज एवरी टाइम इफ यू जस्ट ग्रो फॉर टू स्टेप ऑल्सो, वो इंटरेस्टिंग है। एंड जब लगे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बैकवर्ड जाने से बेटर है खड़े हो जाओ, just see other people, appreciate them, celebrate them, and then you can go further. बट ऐसा पॉजिटिविटी रखना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, बिकॉज द इंडस्ट्री इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, एंड एक्टिंग इज सच अ प्रोफेशन। आपको एक साल तक काम नहीं मिले, फिर सडनली आपको एक साल में you'll get 3 or 4 projects, you know this much better than I do. So, how do you maintain your positivity, your receptivity to other people? As you said, also celebrating other people's successes. It's not very easy, right? Because you are also in a very competitive industry. So, how do you maintain that positivity and that resilience, which also allows you to grow as an artist and as a human being? So first, it's very difficult, and sometimes me also in the beginning, I also feel little bit jealous, but jealous in a positive way, because if I see someone growing like this, and I saw, oh, I was super happy for them, but at some place I was sad for myself, not in terms of, oh, how I can be reached there. I have to work hard, and the acceptance of acknowledging things, and this spirituality, because I'm a visual artist, so I have decided what kind of actor I wanted to be in this scenario, what kind of films I wanted to do। एंड जब मैं ये नहीं कर रही हूँ, जब मुझे ये नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ,
पर बहुत सारी चीजें मना करनी पड़ती है। बहुत सारी चीजें मुझे लगता है मुझे नहीं करनी चाहिए, मेरे करियर के इस पॉइंट पे मेरे लिए शायद ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है ऐड करने से ज्यादा मैंने माइनस पे बहुत ध्यान दिया है। तो उसकी वजह से मुझे चीजें आसान हो गई, और मैं ज्यादा ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा सबसे फेवरेट काम है खिड़की पे बैठ के ना बाहर की तरफ जो नीचे चीजें हो रही है वो देखना। क्योंकि मैं देख Understood. रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब इट्स नॉट अबाउट, आई एम नॉट एक्चुअली डिस्टर्बिंग अदर पर्सन्स प्राइवेसी। एट द सेम टाइम इट्स लाइक अगर नेचर मेरे सामने और मैं देख रही हूँ और मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, सिर्फ देख रही हूँ, तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है। बट वो मेरी कविताओं में आता है, वो मेरी चीजों में आता है। तो मुझे एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि वो देखना और वो जो नेचर की रियल टाइमिंग है ना, कि जब गाड़ी यहाँ से जा रही है तो एक गाड़ी यहाँ से निकल गई, एक औरत यहाँ से भगी तो एक बच्चा यहाँ खड़ा है, एक ऑटो यहाँ से निकल गया। तो मुझे लगा वही वही टाइम तो रिक्रिएट कर रहे हैं हम हमारे सिनेमा में। बट फर्क ये पड़ जाता है कि एक दूसरे को जब तक हम बोलते हैं कि जब मैं आपको इशारा करूँ तब आना है, जब आपको इशारा करूँ, वो टाइमिंग मैच नहीं होती शायद। इसलिए हर फिल्म हमें पसंद नहीं आती। क्योंकि जिन लोगों ने वो नेचर की टाइमिंग के साथ ट्यूनिंग करके मैच कर लिया, उनकी चीजें बहुत मास्टरपीस बनी है, मुझे ऐसा फील हुआ। जो आपको सडनली किसी कैरेक्टर के लिए फील करवा देती है, आपको लगता है यार मुझे लग रहा है मैं चुपके से किसी की लाइफ को देख रही हूँ। मुझे लग रहा है मैं चुपके से देख रही हूँ कि अरे ये औरत अपने बच्चे को कैसे बात खिला रही है, क्या कर रही है। सो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें ना मुझे, मतलब मैं मैं खुद अचंभित हो जाती हूँ, कभी कभी मैं सरप्राइज हो जाती हूँ। बट ये सारे पॉइंटर्स लेके मेरे भी बहुत लो डेज आते हैं, बहुत बार लो डेज आए हैं। बट यू यू नीड टू कनेक्टेड टू योर फैमिली, especially your people who can make you grounded, who can tell you that from where you have started this journey and what you are thinking when you have started this first step of you wanted to become an actor. So one of my teacher, my guru, मतलब बहुत सारे इतने गुरु रहे मेरी लाइफ में, इतने टीचर्स रहे हैं, उनकी वजह से गाइडेंस मिलता रहता है। एंड विक्रम सर के बारे में इसलिए मैं बोलूंगी क्योंकि मेरे एक टीचर है जो गेस्ट फैकल्टी थे, विक्रम मोहन सर। बट ही इज द ओनली पर्सन एनएसडी के बाद मैं अभी तक उनसे बहुत कनेक्टेड हूँ। सो वो उनको जब भी मेरे को ऐसा लगता है मैं बहुत एकदम ट्यूनिंग जा रही है मेरी, कुछ उनको फोन करती हूँ तो ही ऑलवेज टोल्ड मी कि तुझे क्या फील हो रहा है, तू क्या सोच रही है, आराम से बैठ के ध्यान लगा, एक चाय पी, डिसाइड कर, एंड देन देख तेरे लिए वर्क कर रहा है क्या। तू अपने आप को देख पा रही है, वहां नहीं देख पा रही है, मत जा। विथ कंफ्यूजन मत जा, इफ यू आर क्लियर जस्ट जा, कहीं पे भी पहुंच जाएगी। तो मुझे वो चीज बहुत हेल्प करती है। तो जब कोई मुझे एक्टर्स मिलते हैं, आर्टिस्ट मिलते हैं, मैं ट्राई करती हूँ कि उन्हें मैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी दूं, क्योंकि चीजें बहुत अजीब हैं, कुछ गारंटी नहीं है। बट मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि अगर जो तुम्हें चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो कुछ और करने लगो। क्योंकि इफ यू वांट टू गो इन 11 नंबर बस, डोंट गो इन 7। सिंपल। वो प्रॉब्लम क्या होगी ना, जर्नी लंबी हो जाएगी। एंड इतने लोग मिलते हैं ना, ये एनर्जी जो है ना, इतने लोग मिलते हैं कि आप कभी खुद की इनर वॉइस नहीं सुन पाते हो, आप क्या चाहते हो। सो आपको ये खुद को पूछ पाना, इसलिए लिखना पढ़ना हम बंद कर देते हैं एक समय के बाद। लिखना पढ़ना बहुत जरूरी है, मतलब पढ़ना तो है ही, बट लिखना, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें क्या दिमाग में आया, वो मुझे बहुत हेल्प करता है। अगर मैं कोई एक चीज लिख दी, मैंने डिसाइड किया है, तो उसके इर्द गिर्द बहुत सोचती हूँ, ओपन भी रहती हूँ। बट जो लिखा है उसको थोड़ा फॉलो करती हूँ मैं कभी कभी। I wonder what your mother feels about you. She must be very proud of you. शी इज, बट शी इज लाइक, आई थिंक बिकॉज ऑफ हर ओनली, होता है ना कि आप पूछते हो माँ मैं पहुंच गई, वो बोलते हैं हाँ अभी नहीं है। तो शी इज लाइक दैट, शी नेवर, एक्चुअली शी नेवर एक्सप्रेस हर व्हाट शी एक्चुअली फील्स। मुझे अभी भी याद है जब प्रेसिडेंट हाउस में हम लोग बैठे थे, उस एज में मुझे पता नहीं चला, 15 प्लस, आई गॉट प्रेसिडेंट अवार्ड। आई वॉज वंडरिंग वो प्रेसिडेंट हाउस में मोर घूम रहे। तो मैं मोर देख के एक्साइटेड हो रही थी। मुझे अच्छे से ध्यान नहीं, मैंने मैम की स्पीच सुनी, एंड वो रसगुल्ला खाते खाते, वो जो रसगुल्ला खाते खाते अवार्ड ले आए वैसे होता है ना, पता भी नहीं चला। बट मेरी मम्मी के साथ एक एक सेकंड मैंने उनको देखा, एंड वो पूरी आंखें भर के जिस तरह से मुझे देख रही थी ना, तो मुझे वो मोमेंट याद है। मैं उनके पास जाके बोला, मैंने कहा मम्मी ये, तो मम्मी क्या बोली, खाने थोड़ी आए हैं। तो मेरे को एक सेकंड को ये लगा ना कि वो सिर्फ एक चेयर पे बैठी थी और मैं देख रही थी सब इधर उधर, सब है इधर उधर, शी वाज जस्ट सिटिंग एंड लुकिंग एट मी। सो उतना ही था बोलने के लिए, पर वो कभी एक्सप्रेस नहीं करती है। तो आई गेस शी सेड, अभी तक वो 6 साल में मुंबई नहीं आई मेरे पास। मैं रिक्वेस्ट कर करके मर गई, मैं उनके पास कितनी बार गई हूँ,
इतनी बार जाती आती रहती हूँ, मैंने अभी भी उनको बताया तो मुझे बोली थी, अरे वाह, जब डिफिकल्टीज आती है मैं फोन करती हूँ तो मुझे तुरंत बोलेंगे, अरे तुम रो क्यों रही हो। हाँ, चीजें होंगी, 100 रोटी की मेहनत करो, एक रोटी मिलेगी, अभी दुनिया ऐसी ही है। तो शी यूज टू टेल मी सो मेनी थिंग्स ना। तो वो मुझे ऐसे पकड़ के रखती है जैसे कुछ नहीं हुआ है, यहीं रहो। हो रहा है, हो रहा Wonderful. Wonderful. I mean, we all need our mothers, I think. Whatever age we are, we all need our mothers. है। मदर्स एंड एक और चीज Indira, मैं ऐड ऑन, हाँ, एक और चीज मैं ऐड ऑन करती हूँ, मुझे ऐसा फील होता है ना, जी, आप छोटे रहते हो ना, आपको इतना वार्मथ देते हैं, इतना गले लगाते हैं, इतना प्यार करते हैं, आप एक एज, सर्टेन एज के बाद आपको वो बंद कर देते हैं, बड़ा हो गया बोल के। मुझे वो चीज मिसिंग लगती है, पता है क्यों? क्योंकि वो मिसिंग होने की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो वार्मथ ढूंढने के लिए ना कभी कभी हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। एंड आपको समझ नहीं आता है, क्योंकि आप नहीं जान सकते ना, यू आर नॉट, इतने आप आगे नहीं निकल के कि आपको पता है आगे कल क्या होने वाला है। सो मुझे लगता है पेरेंट्स को ना हमेशा बच्चों को ना, उनके लिए वो बच्चे वैसे ही रहने चाहिए, तो बातचीत में आ जाता है। बट बॉडीली फिजिकली वी नीड देम, वो उनको पता नहीं चलता, और उन्हें भी नहीं पता उन्हें हमारी बॉडी के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए एक सर्टेन एज के बाद। सो वो मुझे मिसिंग लगता है हर बार। you have to articulate it. You have to tell your mother. You take the first step, and then she'll hug you back. या ऐसे पीठ पे हाथ करके खत्म हो जाती है बात। So, Indira, tell me about Spying Stars and what attracted you to the film. There are so many things, but the major, if in short I can express this, life is फुल ऑफ साइंस है, जो जो भी हम जी रहे हैं, इतना सब कुछ आसपास है, मशीन, साइंस, एंड इवन छोटी छोटी चीजों के लिए भी हर जगह पासवर्ड है। मैं तो बहुत बार भूल जाती हूँ। And सो OTP, password and ओटीपी, OTP. पासवर्ड एंड ओटीपी, एंड इफ यू वांट टू एक्सेस समथिंग, मतलब कल कल की बात है, कल बड़ा अजीब था, मैं इसमें पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते बार बार उसका स्क्रीन टाइम चला जा रहा था। तो जब मैंने जाके मोबाइल में नीचे सेट किया कि मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, तो उसमें एक जगह लिखा आया कि जब आप देखते रहेंगे तो वो चालू रहेगा, बट उसके लिए यू हैव टू गिव एक्सेस फॉर द कैमरा। सो आई थॉट ऑफ, ओ माय गॉड, दिस इज वेरी वियर्ड, वेरी वियर्ड, मतलब इतनी सारी चीजें हैं। मैं तो मोबाइल बैठ के पूरा चेक भी नहीं किया क्या क्या है, बट नई नई चीजें आती जा रही हैं, और हम आसान सोच सोच के कि चीजें आसान होंगी, हम अपना पूरा एक्सेस किसी को दे दे रहे हैं। तो ये बहुत डरावना सा हो रहा है, क्योंकि अब कुछ पता नहीं चल पा रहा है। मैं कल न्यूज देख के आए, सडनली फील सैड फॉर समथिंग, बट देन आई रियलाइज इट्स एन एआई जनरेटेड थिंग। सो एक पॉइंट के बाद जब सामने इतनी सारी चीजें होंगी तो पता कैसे चलेगा कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा बनाया हुआ है। तो दिस इज वेरी वियर्ड विथ स्पाइंग स्टार्स। सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे ऐसे लगती है कि वो जो लाइफ में कितना लॉजिक, कितना भी टेक्निकलिटी, जितनी चीजें हो जिसके आंसर्स हम लोग बहुत ही इंटेलेक्चुअल होके चाहते हैं, वो सब चीजें, और लाइफ में, आपके लाइफ में आपका स्पिरिचुअल पॉइंट अपने आप आता है, वो कोई किसी को दे नहीं सकता। वो जर्नी आपकी अपने आप मोमेंट पे आएगी जहां आप रियलाइज करोगे कि आपको समझ आ रहा है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि ये जो छुपन छुपाई है ना अजीब तरीके की, कि मैं दिखना भी चाहती हूँ बट मुझे आइसोलेशन भी चाहिए, मुझे मेरा टाइम भी चाहिए, पर मैं चाहती हूँ लोग मुझे समझे भी, इसके बीच में। लेकिन फिल्म को जिस तरह मैं देख पा रही हूँ, फिल्म जाती है कि एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट नेचर एंड ह्यूमैनिटी। सो हम ये जो तीन फेसेस देख पा रहे हैं, जो मेरी रिसीविंग हुई थी फर्स्ट टाइम रीडिंग करने के बाद स्क्रिप्ट की, एंड मैंने सुनते ही बोला, मैंने कहा कितना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम ही नहीं बच पा रहे हैं। दिक्कत ये हो रही है कि कुछ दिन के बाद ऐसा हो जाएगा कि अभी जैसे मैंने सुना, किसी ने मुझे कहा कि तुम्हारा फोटो होके एआई मॉडल हो जाएगा, सो दे विल पे यू, जस्ट सेंड योर फोटोग्राफ। सो एक पॉइंट के बाद क्या फिल्म्स भी ऐसे हो जाएंगी, प्रोजेक्ट्स भी ऐसे हो जाएंगे, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट सिटिंग एट माई होम यूजिंग माई इमेज एंड अर्निंग मनी। तो ये हो क्या रहा है? मतलब हम सबसे ज्यादा अजीब सिचुएशन में होंगे जहां 2 मिनट में हमारे गेट पे नॉक होगा और हमें सामान मिल जाएगा। हर समय हम सिक्योर फील करेंगे क्योंकि हम बहुत सिक्योरिटी में हैं, पर एट द सेम टाइम हम शायद सिक्योर नहीं होंगे क्योंकि कोई कंटिन्यूअसली हमको देख रहा है। सो बहुत बहुत ही डरावना सा है कुछ, मतलब अगर अभी थोड़ा सा भी मैं बोलूँ कि अगर 100% लाइफ में से मैं 80% भी अपने आप में जितना ह्यूमन रह पाऊँ, 20% तो मुझे टेक्निकली अवेयर रहना पड़ेगा अपग्रेडेड होकर। बट वो क्या चीज़ है जिसका एक्सेस मैंने नहीं दूँ किसी को। मैं एक सर्टेन पीरियड के बाद इस रूम से उस रूम तक फोन नहीं लेके जाती।
सो क्या मैं वो एक दायरा बना पा रही हूँ जहाँ मेरा अपना एक जंगल है, जहाँ मैं सिर्फ नेचर के साथ सांस लेके अपना लाइफ जी सकती हूँ, जहाँ मैं ह्यूमन रह सकती हूँ, जहाँ मैं मेरे थॉट्स के साथ प्योर रह सकती हूँ? क्योंकि हर चीज इतनी अजीब हो रही होती जा रही है। अभी जूम कॉल भी तो हम टेक्निकली कर रहे हैं, हम मिल भी नहीं पाएंगे बिल्कुल. शायद। But I think what is the best thing about this, and I think that is where, as you said, the idea of your humanity and the purity of humanity will retain. The ideas that we exchange will always remain ahead of technology. No, I mean, what we are thinking today, okay, if AI can know it today, it doesn't know what we're going to think tomorrow. And as human beings, we're intelligent, we're reading, as you said, we're writing. So our minds are also growing. So I think the beauty and the challenge is that our minds have to grow at a faster rate than AI. And I think that is my belief. I believe that we will be able to do that. So, as you said, creating these boundaries is very important. A small thing like what you're saying, you don't take your phone to the next room with you wherever you go, or you don't, you switch it off, or you sort of keep it on silent and use it only when you have to. These are very important things. And I think uh, that is how we will actually, I mean, maybe not beat AI, but definitely uh, hoodwink AI or outsmart AI. So it's very, very interesting, and you put it in a very, very, but I wanted to share this with my experience. I have this question come up, and I have written it in my notebook also. While I was thinking of कि बहुत सारे ऐसे थॉट्स सडनली आते हैं and आपको लगता है ये क्या है, क्योंकि मैं मेरे ही थॉट्स को क्रॉस कर रही होती हूँ आफ्टर अ पॉइंट. सो यू सेड इट वेरी ब्यूटिफुली, बट मुझे ऐसा लगा कि ये जो कंपटीशन है ना, कि वो मुझसे पहले पहुंच जाएगा, मैं पहुंच जाऊं, ताकि कुछ गड़बड़ नहीं हो. ये जो घबराहट है ना, दिस फियर ऑफ कुछ हो नहीं जाए, सो वील बी अपग्रेड, हम हमेशा आगे रहेंगे, चीजें रहेंगी. मुझे इसके ऑपोजिट फील हुआ. मुझे ऐसा लगा कि ये जो एल्गोरिदम है, ये जो चीजें हैं जो फास्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें आगे इफेक्ट हो रही हैं, इससे उल्टा हो रहा है. जैसे ही मैं स्लो हो रही हूँ, जैसे ही मुझे लग रहा है मुझे टाइम मिल रहा है, जब मेरा अलोन टाइम है, जब आइसोलेशन है, तब वो स्लोनेस में मुझे डिटेल्स दिख रही हैं. सो मुझे पता Very चल रहा है कि interesting. ये मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है. और आई थिंक दिस वोंट वर्क फॉर मी इन फ्यूचर ऑल्सो. जैसे कोई मुझे कह रहा था कि अरे आप इन्वेस्ट करते हो क्या, मैंने बोला नहीं, तो बोले अरे राइट जगह इन्वेस्ट करो, AI इज द फ्यूचर. सो मैं चुपचाप ऐसे सुन के ऐसे, मैं बोला कैसे रे. तो उसने जो बोला, मैं 2 सेकंड सुना. तो माय पॉइंट इज, मेरे को अच्छा क्या लगता है, जो बात डिफरेंट है जो कही जा रही है, सुनो, पर उस पर विचार कर लो. उसी वक्त उस चीज का जवाब देना जरूरी नहीं है शायद. वो जो हम स्मार्ट बन रहे हैं कि हम साबित हो जाएं, हम बता दें कि मुझे भी पता है, इस वजह से गड़बड़ हो रही है सारी. जैसे मैं कल जिम में थी, एक बड़ी अजीब, बहुत ही सॉरी आई एम शेयरिंग दिस, बहुत वियर्ड चीज हुई. मैं वॉशरूम जा रही थी ट्रेनिंग के पहले, तो मैं जैसे ही अंदर गई, मैंने देखा कि पूरे पॉट पे सब फैला हुआ है पानी. तो मुझे एक सेकंड को लगा ओ माय गॉड, तो मैंने स्प्रे किया. एंड आई सडनली, मेरे फर्स्ट इंस्टिंक्ट नहीं आया कि मैं पहले ही क्लीन कर दूं. मैंने स्प्रे किया, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, दीदी बाहर बैठी थी. मैं अंदर गई, मैंने स्क्वाट्स में वॉशरूम यूज किया. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है बाहर. करने के बाद जैसे ही मैं निकल रही थी, मैंने टिश्यू से पूरा साफ कर दिया. ठीक है. करने के बाद आके हाथ पाथ धोया. मैं सोच रही थी कि पहले फर्स्ट वाले में नहीं किया मैंने लास्ट में जाते हुए, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या थॉट आया, मैंने खुद को पूछा. थॉट ये था कि जो अगला आएगा वो सोचेगा ये मैं गंदा करके गई. ओ माय गॉड. एंड मैंने आके इसके ऊपर ऐसे हुआ कि ओ ऐसा, इसलिए मैंने ऐसा किया. तो ये जो खुद की बातचीत है ना खुद से, एक होता है कि क्या हम यहाँ होके भी खुद को यहाँ से देख पा रहे हैं. सो मैं तो यहाँ हूँ, बट मुझे उस कमरे से इस कमरे में बैठी हुई इंदिरा दिख रही है. सो अगर वो थोड़ा सा जो अवेयरनेस का लेवल है, वो ऐसे हो जाए, और एक राइट टाइम पे जो स्विच ऑन स्विच ऑफ है ना, ये जो स्पीड का स्विच ऑन स्विच ऑफ है, ये हमारे हाथ में होना, सो हम कभी भी किसी चीज में ट्रैप में फंसेंगे ही नहीं. क्योंकि हम हमारी स्पीड से नेचर की स्पीड में चलेंगे. नेचर की देखो, नेचर की स्पीड स्लो है. आप कितना भी देखते रहो, वो कोई उसको हार्ड एंड फास्ट ही नहीं, कहीं जाना ही नहीं है.
बट वो सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है। और हम जिस ग्रोथ को सोच के कि हम ग्रो कर रहे हैं, हम और ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि हमने दूसरों की स्पीड पकड़ ली है और हमारा स्पीड ही चली गई एकदम से। सो आपकी वजह से मैंने ये थॉट आया, मुझे पता नहीं, या आपने बोला तो मुझे But ऐसा थॉट आया। wonderful. I think it's a very interesting idea. This is something that's worth looking at, to use the slowness of nature to, in a way, live a very different life from what the algorithm expects you to. I think that's a very interesting idea. So I think I can't wait to watch Spying Stars. I wish you all the best. You must be excited about going to Busan as well. Yeah. What are your plans? So, adding to this first very interesting point, when this film comes to me, na, till that time, I was not very good in English. I'm telling you this. And it's an English Sinhalese film. So it's an Indo-French Sri Lankan film, a very interesting collaboration. I've never heard of this. Indo-French Sri Lankan. And then Vimukti, the director, and Neela Madhapanda sir, the producers, they actually shows me like इतना trust, इतना faith कि uh, हमें आनंदी मिल गई है। बट ओके, सुनो, तुम कहीं जाके इंग्लिश मत सीखना, तुम आ जाओ, हम कर लेंगे। एंड दैट वर्क्स फॉर मी, बिकॉज आई थिंक इंग्लिश सीखने जाती तो कहीं से एक्सेंट भी लेकर आती मैं, क्योंकि टाइम जब कम होता है तब हम गलत सीख लेते हैं घबराहट में। तो वो नहीं हुआ। एंड उस दिन के बाद से आई आई सी माई सेल्फ ग्रोइंग, लाइक कि मैं अभी मतलब बोलती भी नहीं थी, बात भी नहीं करती थी, एंड आई एम इनटू कि मैं अपने खुद के थॉट्स इतने अच्छे से आर्टिकुलेट कर पा रही हूँ। एंड आई एम सुपर हैप्पी बिकॉज इंटरनेशनली जाना एंड वी आर इन कंपटीशन। तो मुझे सबसे फन लग रहा है कि मुझे बाकी जैसे 14 फिल्म्स हैं, तो इतनी सारी जो 14 एशियन फिल्म सिलेक्ट हुई हैं वो सारी फिल्म्स देखने मिलेगी। कोरियन, जापानीज फिल्म, देन ताइवान, देन ओह माय गॉड। तो वो बहुत फन होने वाला है, एंड इतना सारा एक्सचेंज होगा, कल्चरल एक्सचेंज होगा। हम हमारी बात रखेंगे और मे बी पीपल आर कमिंग अप विद देयर ओन थॉट over our spying stars. So that will give me another gate to open to the next level. क्योंकि ये तो खत्म नहीं होने वाला, अभी तो ये बीज की तरह आया है, बट ये मुझे लग रहा है और जाएगा till the end. Wonderful. Indira, apart from this, what are you working on? Is there anything else that you're working on? Yeah, I have recently done सरोजिनी नायडू जी की बायोपिक खत्म करी है मैंने। Wow, तो really? Lucky you. we have finished that, and it's also very interesting because एक डेब्यू फिल्म मेकर विनय चंद्रा जी वो लेकर आए थे कॉन्सेप्ट, एंड इट्स अ हिंदी फिल्म, एंड उनके ग्रैंड ग्रैंड सन भी ही इज ऑन बोर्ड नाउ। सो वी हैव अ Wow. ह्यूज रेफरेंस टू क्रिएट। उनको इतना उन्होंने कुछ दिया है, तो हम कुछ तो दे ही Such सकते an हैं। emancipated woman. It's so inspiring to play. It must be so inspiring to play her. या इट्स रियली फन। और पता है वो जो एक होता है ना कि ओके, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर कमिंग टू मी लाइक लास्ट मोमेंट पे आते हैं, तो मुझे लगता है मैं लूं, मैं करूं अगर मैं कर सकती हूँ तो। बट ट्रस्ट करके जब मुझे लगता है कि नहीं, मैं खुद को देख पा रही हूँ वहां और मैं चली जाती हूँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो वो लाइंड अप है। एंड अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो विच आई एम ऑल्सो वेटिंग, अंगमिली डायरीज का हिंदी अडेप्टेशन। सो Wow. वो बचा हुआ है, एंड मैं कर रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मैं बहुत सिलेक्टिवली काम कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा हो गया बस, हाँ, मेरा एक चीज थोड़ा सा मुझे लगता है